In the diagram, the rack and pinion arrangement, we have one rack that is in the linear direction and the pinion is rotating. In rack and pinion, we have that the motion is transmitted either rotary to translatory, or you can say linear. Linear motion is transmitted to rotary, vice versa, means कि हम रोटरी मोशन को लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं और लीनियर को हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट. The another classification is based on the peripheral velocity of the gears. In this case, we have low velocity gears. If the velocity is less than 3 meter per second, then this type of gearing is known as a low velocity gearing. Second is the medium velocity gears. If the velocity varies from 3 to 15 meter per second, and third is high speed gears. If the velocity is or the speed is greater than 15 meter per second, then such type of gears are known as high speed gears. According to type of gearing, in this case we have external gearing, internal gearing, rack and pinion arrangement. Rack and pinion arrangement is also, you can see, is a part of external gearing. In case of external gearing, the teeth of the gears will be connected to each other externally, and in case of internal gearing, the teeth of the gears will connected with each other internally. For example, in the diagram here, that this is, suppose this is the one gear and this is the another gear. If gear A, in this case you can see the gear A and gear B both will connect externally. In case of externally connected gears, the motion will be of opposite nature. अगर ये opposite nature के हैं, ये अगर clockwise rotate करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. तो इन केस में क्या है कि जब हम दो गियर्स को एक्सटर्नली कंबाइन करेंगे तो जो एक गियर की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी तो वो दूसरे गियर की अपोजिट डायरेक्शन में होगी. अगर हम फर्दर एक और गियर लगा दें, सपोज सी, तो इस केस में द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी इन क्लॉकवाइज, मीन्स ए एंड सी विल हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन. और इन अदर वर्ड्स, if the number of gears connected to each other externally are in odd numbers, अगर gears को हम externally connect करें और उनकी odd number में है, तो वो first and last gear की जो direction of motion होगी, they will be of same nature. And if the number of gears connected externally are of even number, then the direction of motion of first and the last gear will be of opposite nature. जैसे कि इस केस में है, यहाँ पे odd number है 1, 2, 3, तीन नंबर्स हैं gears के 1, 2 and 3. तो फर्स्ट और लास्ट गियर की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी that will be of same nature. अगर ये दो थे जैसे, तो इस केस में क्या था कि जो फर्स्ट एंड दिस लास्ट गियर इज ऑफ opposite nature, the direction of motion is of opposite nature. दूसरा केस था internally connected gears. Internally connected gears में suppose कि ये कोई व्हील है, ये कोई गियर है, इसके इंटरनल साइड के ऊपर टीथ कटे हुए हैं. अगर हमने किसी गियर को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करा दिया तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी ये है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी दूसरे गियर की होगी. मतलब इन केस ऑफ इंटरनली कनेक्टेड गियर, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोथ द गियर्स कनेक्टेड इंटरनली विल बी ऑफ सेम नेचर. अगर एक क्लॉकवाइज में कर रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा.
जबकि इंटरनली एक्सटर्नली कनेक्टेड गियर्स के अंदर अगर दो गियर्स को हम आपस में जोड़ दें, दोनों को मैश करा दें, तो अगर एक क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा। वेयर एज इन केस ऑफ इंटरनली कनेक्टेड गियर्स, अगर एक गियर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो दूसरा गियर भी क्लॉकवाइज में करेगा, या अगर एक गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज में। मीन्स इंटरनली कनेक्टेड के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बोथ द गियर्स विल बी ऑफ सेम नेचर। According to position of teeth on the gear surfaces. First we have straight gearing, inclined gearing, curved gearing. Straight gearing कौन सी है कि जिसके अंदर जो टीथ होंगे दे विल बी इन स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड जिनमें एट एन एंगल जो एक्सिस के ऊपर जो है कि वो किसी एंगल के ऊपर, जैसे कि हेलिकल गियर का है। स्ट्रेट गियरिंग कौन सा है, जैसे कि स्पर गियर है। और कर्व्ड गियरिंग जो कि कर्व की शेप में होंगे, जैसे कि केस है हमारे पास स्पाइरल गियर का। तो यू कैन सी जैसे इसके अंदर स्पर गियर है, इसके अंदर जो गियर के जो टीथ हैं दे आर स्ट्रेट, इसमें स्ट्रेट हैं जो गियर के टीथ हैं। इस केस में जो स्पाइरल गियर हैं दे आर इन ऑफ कर्व नेचर। स्पाइरल गियर आपको नजर आ रहा है, इसमें जो टीथ हैं दे आर ऑफ कर्व नेचर। हेलिकल गियर के अंदर the teeth are inclined, so they are in inclined nature. Now the important gear nomenclature, you can see here the diagram for the gear nomenclature. We have some important terms here. First is what is pinion. A pinion is the smaller of two mating gears. अगर दो गियर को हम मैश कर रहे हैं, जो भी स्मॉलर वन होगा दैट इज द पिनियन। सेकेंड, रैक, इट इज द गियर विद द इनफाइनाइट डायमीटर। इस केस के अंदर जो लीनियर जो मोशन दे रहा है दैट इज रैक। रैक इज इन, यू कैन सी हियर इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, and we assume the straight line to be have the radius of infinite diameter. मतलब जो इस टाइप की जो स्ट्रेट लाइन है उसका इनफाइनाइट डायमीटर होता है, दैट इज द assumption. Next is pitch circle. It is the theoretical circle on which all calculations are usually based. The next is pitch point. Pitch point, या पहले तो आप इसमें pitch circle you can see here the pitch circle. Next is pitch point. It is the point of contact of two pitch circles. दो gears को जब mesh करेंगे तो जिस पॉइंट पे उनका जैसे पिच सर्कल के ऊपर जिस पॉइंट पे वो मैश करेंगे दैट पॉइंट इज नोन एज द पिच पॉइंट. फिर है सर्कुलर पिच, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड. इसमें पिच जो सर्कुलर पिच है दैट इज डिनोटेड बाय पी. इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल अलोंग द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑन वन टूथ टू द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द अनदर टूथ. टूथ के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए और दूसरे टूथ के ऊपर वो दूसरा पॉइंट सेम कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लीजिए, तो दिस distance is known as the circular pitch. It is generally denoted, it is equal to pi d by t, where d is the pitch diameter and t is the number of teeth. Another term is module. It is the ratio of pitch diameter to the number of teeth. जो module है that is the ratio of pitch diameter to the number of teeth. मतलब it is generally denoted by small m, that is equal to small d by t, where d is the pitch diameter and t is the number of teeth. Diametral pitch, the number of teeth on the gear per unit length of pitch diameter. तो जो diameter pitch है it is the ratio of number of teeth to the pitch diameter. मतलब it is the reciprocal of the module. It is the reciprocal of the module. Addendum circle, here you can see
the addendum circle. It is a circle passing through the top of the teeth and is concentric with the pitch circle. जो addendum है, addendum में addendums के वहाँ से एक लाइन जा रही है, मतलब एक सर्कल बनाया, that is concentric with the circular pitch circle, that is concentric with the pitch circle. Another is the denendum circle. It is a circle drawn through the bottom of the teeth. जो टीथ का जो बॉटम है वहाँ से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, that is concentric with the pitch circle, is known as the denendum circle. Now what is the addendum? It is the radial distance of a tooth from the pitch circle to the top of the teeth. जो टूथ है इसके अंदर रेडियल डिस्टेंस है. एडेंडम क्या है कि रेडियल डिस्टेंस है बिटवीन द pitch circle to the top of the tooth, and dedendum, it is the radial distance between the pitch circle to the bottom of the tooth. Now we have gear ratio. Gear ratio, it is the ratio of number of teeth on the gear to the that on pinion. Another is velocity ratio. It is the ratio of angular velocity of the driven gear to the driver gear. Another is pressure angle. It is the inclination of the line of action of the pressure between a pair of meshing teeth with respect to the line drawn tangent to the pitch circle at the pitch point. Now we have forms of teeth. What are the various forms of teeth? We have involute teeth and the cycloidal teeth. Involute teeth के अंदर क्या होगा कि if the point is traced, the tracing point क्या आ गया कि जैसे कोई ड्रम है उसके ऊपर रोप रैप कर रखी है, अगर हम उसको अनवाउंड करते हैं, कोई ड्रम है उसके ऊपर रोप वाउंड कर रखी है, अगर हम उस रोप को अनरैप करते हैं, देन द पॉइंट जो ट्रेस करेगा कारो, दैट विल जनरेट द इन्वोल्यूट टीथ. मतलब कि जो कोड है जो कि ड्रम के ऊपर रैप कर रखी थी, जो कोड, अगर हम उसको धागे को या कोड को हम अनरैप करना शुरू करते हैं, तो अगर हम कोई पॉइंट उसके ऊपर कंसीडर करते हैं कोड के ऊपर, देन द पाथ ट्रेस्ड बाय that point on the cord while unwrapping is known as the involute profile. साइक्लोइडल टीथ के अंदर क्या है कि अगर कोई ड्रम है उसके ऊपर, उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, अगर उसको हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर रोल कराएं विदाउट स्लिपिंग, देन द कर्व ट्रेस्ड बाय दिस पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज द साइक्लोइडल प्रोफाइल. साइक्लोइडल प्रोफाइल के अंदर अगर कोई जो पॉइंट है, अगर ये फिक्स सर्कल के बाहर कर्व ट्रेस करता है, देन इट इज नोन एज द एपिसाइक्लोइड. अगर ये इनसाइड द फिक्स सर्कल होता है, पार्ट ट्रेस करता है, देन इट इज नोन एज द हाइपोसाइक्लोइड. जो साइक्लोइडल टीथ है, इट इज जनरली यूज्ड इन द रिस्ट वॉचेस. इट कैन ट्रांसमिट मोर पावर्स. It transmits almost the constant velocity ratio as compared to the involute teeth. Now, what is a gear train? In this case, we have 3 gears. A gear train is a set or system of gears arranged to transfer rotational torque from one part of a mechanical system to another. गियर ट्रेन को जनरली हम इसलिए वो करते हैं जब हमें मैकेनिकल एडवांटेज लेनी है या हमें वेलोसिटी रिडक्शन चाहिए कहीं पे, तो वहाँ पे हम जनरली गियर ट्रेन्स को यूज़ करते हैं. हम नंबर ऑफ गियर्स यूज़ करते हैं फॉर द पावर ट्रांसमिशन. तो अब इसके बीच में जैसे हमारे पास व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द गियर ट्रेन. फर्स्ट इज द ड्राइविंग गियर अटैच टू द इनपुट शाफ्ट. जो गियर इनपुट शाफ्ट के ऊपर अटैच होगा, दैट इज नोन एज द ड्राइविंग गियर. फिर है हमारे पास ड्रिवन गियर, इट इज अटैच टू द आउटपुट शाफ्ट. आइडल गियर
The idle gear is connected in between the driving and the driven gears. Idle gears, it doesn't affect the speed ratio, but it is generally used to transmit the motion for some more distance and for the desired direction. अगर हमें desired direction चाहिए तो उसके लिए हम generally idle gears को use करते हैं. क्या है कि जैसे एक तो हमारे पास इनपुट शाफ्ट होगी और दूसरी हमारी आउटपुट शाफ्ट होगी. जो गियर इनपुट शाफ्ट पे लगेगा दैट इज नोन एज ड्राइविंग गियर, और जो गियर ड्राइविंग शाफ्ट पे लगेगा, सॉरी आउटपुट शाफ्ट पे लगेगा, दैट इज नोन एज ड्रिवन गियर. Idle gear, it is interposed between the driving and the driven gear in order to maintain the direction of the output shaft the same as the input shaft or to increase the distance between the drive and the driven gear. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हमें एक गियर से दूसरे गियर तक पावर ट्रांसमिट करनी है और दे आर एट सम डिस्टेंस, तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं तो हम उनके बीच में आइडल गियर्स लगा देंगे. या हमें कहीं पे रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए एट द आउटपुट शाफ्ट, तो हम वहां पे भी आइडल गियर, जैसे ये एक गियर है और दूसरा गियर ये है. सपोज कि दिस इज द ड्राइवर एंड दिस इज द ड्रिवन. हम चाहते हैं कि अगर ये क्लॉकवाइज के अंदर है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्लॉकवाइज हो. तो इसको अचीव करने के लिए, बट द डिस्टेंस इज मोर बिटवीन द टू, तो इसको अचीव करने के लिए हम एक बीच में इंटरमीडिएट गियर्स लगा देते हैं. So this gear is known as the idler gear. This is known as the idler gear. तो ये क्या है कि इन दोनों की अपोजिट नेचर में हो जाएगा. अगर ये क्लॉकवाइज में है तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का अपोजिट नेचर में हो गया. बट अल्टीमेटली द गियर ए एंड गियर बी विल बी ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन. दूसरा इस आइडल गियर का यहाँ पे क्या फंक्शन है कि हमें यहाँ से ए और बी में पावर ट्रांसमिट कर दी या मोशन ट्रांसमिट कर दी विच आर एट सम डिस्टेंसेस. यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था, तो एट सम डिस्टेंस क्या है कि इसने एक कनेक्शन का काम किया टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम दिस गियर टू दिस गियर. और दूसरा क्या काम हुआ आइडल गियर का कि हमें डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल गई. मतलब हम चाहते थे कि जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट शुड बी ऑफ द फर्स्ट गियर. सो इसको अचीव करने के लिए हमने बीच में आइडल गियर लगा दिया. तो गियर ट्रेन क्या है कि नंबर ऑफ गियर्स है, हम उसको एक सेट लगा देते हैं जो कि हमें लार्ज वेलोसिटी रिडक्शन चाहिए कहीं पे, या हमें मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, तो उस केस के अंदर जनरली हम गियर ट्रेन्स को यूज करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ट्रेन्स, वी हैव सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन. सिंपल गियर ट्रेन क्या है कि हर गियर के लिए अलग अलग शाफ्ट होंगे, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है सिंपल गियर ट्रेन. पहले वाला डायग्राम है सिंपल गियर ट्रेन के अंदर हर गियर के लिए अलग अलग शाफ्ट होंगी. कंपाउंड गियर ट्रेन के अंदर क्या है कि एक शाफ्ट के ऊपर एक से ज्यादा गियर होंगे, तो दैट इज नोन एज द कंपाउंड गियर ट्रेन. नेक्स्ट इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर क्या है कि जैसे इसके अंदर एक आर्म दिखा रखी है, सन गियर है, रिंग गियर है, प्लैनेट गियर्स है.